ہماری خارجہ پالیسی اور داخلی پالیسی میں چائنا کا 60% کردار رہے گا. پاکستان میں ایک ایسا تصور ابھرے گا دنیا میں کہ ایک بنانا ریاست بننے جا رہی ہے. جس چیز پہ حکومت ہاتھ ڈالتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. گندم پہ ہاتھ ڈالتی ہے ناپید ہو جاتی ہے. چینی پہ ہاتھ ڈالتی ہے ڈبل قیمت ہو جاتی ہے. پٹرول کی قیمت کم کرنا چاہتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اگر 2 سال کے اندر اکانومی کو 5.8 سے یہ -2 یا -4 پہ لے آئے ہیں, آپ انہیں کہہ رہے ہیں انڈیا سے ان کے تعلقات ہیں. اچھا کس کا نہیں تھے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاک فوج کے اندر کوئی اختلاف پایا جاتا ہے؟ نمسکار دوستو. اب اگر آپ کچھ سالوں پہلے دیکھا نا تو ایسا لگ رہا تھا کہ چائنا پاکستان کو صرف اور صرف یوز کر رہا ہے انڈیا کے خلاف, اور اس کو یوز کرنے کے لیے جتنے پیسے دینے پڑ رہے وہ دے رہا ہے, چاہے وہ ہتھیار دینا ہو, چاہے کوئی شپ دینی ہو, کچھ بھی کرنا ہو وہ دیتا ہے. لیکن اب چائنا کو بھی لگتا ہے کہ بھائی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے, کیونکہ جس طریقے سے چائنا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پاکستان جو ہے انڈیا کو روکے گا وہ تو ہو نہیں پا رہا. اوپر سے پاکستان جو برباد ہو رہا ہے وہ تو الگ ہی بات ہے, اور اوپر سے اگر آپ انڈیا کی ڈائریکٹ کمپٹیشن مطلب چائنا کو جس طریقے سے لگ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بزی رہے گا وہ نہیں ہو رہا ہے, اور انڈیا جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر جگہ پر چائنا کو کمپٹیشن دے رہا ہے. تو ایسی سچویشن تو چائنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اس کو کمپٹیشن کرنی تھی امریکہ کے ساتھ, ویسٹ کے ساتھ, اور انڈیا کو بزی رکھنا تھا پاکستان کے ساتھ. اب انڈیا آج ایسا ہے کہ چائنا کو یہاں پر پڑوس میں ٹکر دے رہا ہے, اس طرف امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے, اور پاکستان تو گنتی میں بھی نہیں آتا. تو چائنا کی بس ایک ہی کیلکولیشن تھی کہ اپنا ایک ڈمی اسٹیٹ یا پھر کہے کہ اپنی ایک فرینچائزی بنا کر پاکستان کو رکھا جائے, جب چاہے تب کچھ پیسے دے دیے, وہ ہر وقت سنیں گے تمہاری. لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھ نہیں رہا. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. جو ماحول آج پیدا ہو گیا ہے یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے کس حد تک خطرناک ہے کی صورتحال ہے, یا پاکستان کی عوام کی جو صورتحال ہے وہ کس حد تک متعامل ہو سکتی ہے اس قسم کے کسی تصادم کو, یہ ایک اہم بڑا سوال ہے. عوام کی صورتحال تو ارے یار عوام سب سے بڑے مظلوم ہیں. عوام کی دمائیں مہنگی, سبزی ٹماٹر بیگن مہنگا, بے روزگاری کی انتہا. وہ کہتے ہیں دہاڑی والے مزدور کی بڑی ہمدردی ہے. آپ کے دیکھیں آپ کراچی کی سڑکوں کے اوپر وہ پھاوڑے کے بیٹھے میں خالی اپنے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. دعویٰ نہیں کر سکتا, وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ فرشتہ ہے اور آسمان سے اتر کے آیا ہے. سب گناہگار ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب کو جو کچھ کرنا ہے حکمرانوں نے کرنا ہے. آپ نواز شریف پہ جتنے بھی الزامات لگانا چاہیں وہ اس کا جواز کوئی نہ کوئی نکلتا ہے کہ آپ نے 2 سال سے ان کو دیوار پہ لگا کے رکھا ہوا ہے. یعنی آپ انہیں غدار بھی کہہ رہے ہیں, آپ انہیں کہہ رہے ہیں انڈیا سے ان کے تعلقات ہیں. اچھا کس کا نہیں تھے؟ مشرف نہیں کیا تھا وہاں آگرہ پہ تاریخ بدلنے کے لیے؟ ہم بھی ساتھ تھے اس کے, ہم نے آگرہ کے سارے مناظر دیکھے ہیں. مشرف کہتا تھا میں تاریخ بدلنے آ رہا ہوں, اور پھر جو حشر ہوا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اس بات کو چھوڑیے, انڈیا سے یا افغانستان سے ہمارے تعلقات بہت سینسٹیو ہیں, اس میں بہت سی چیزیں انوالو ہیں. دیکھیے یہ جو وزیر مشیر بول رہے ہیں نا جی, یہ ریلیونٹ قسم کے لوگ, انہوں نے 2 باتیں ایسی کہیں جو بڑی خطرناک ہیں. ایک بات تو یہ کہی ہے کہ پہلے تو یہ اداروں کو لڑایا کرتے تھے, گویا فوج کو لڑایا کرتے تھے حکومت کے خلاف. اب یہ اداروں کے اندر لڑائی پیدا کر رہے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاک فوج کے اندر کوئی اختلاف پایا جاتا ہے؟ حکومت کی جو صورتحال ہے وہ بتاتی ہے کہ ان کے اندر ایک بوکھلاہٹ پائی جاتی ہے. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ کچھ کسی ادارے کے اندر کسی لابی کو مخاطب کر رہے ہیں, یا یہ ان کا انداز ہے کہ انٹرنیشنل فورسز چاہے امریکہ ہو, چاہے سعودی ہو, چاہے ترکی ہو, اور چاہے انڈیا ہو, ان کے رابطے ہیں ان کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو آپ نے ملک سے باہر بھیج دیا ہے اور اب آپ ان کا خط لکھیں گے اور واپس اسے آنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف ایک طاقتور آدمی ہے جسے عالمی طاقتیں مجرم نہیں سمجھتی بلکہ ایک عالمی سطح کا اسٹیٹسمین سمجھتی ہیں. اور جو ملک کے باقی حالات ہیں اپوزیشن کے علاوہ, بے روزگاری, مہنگائی, انفلیشن, ڈالر کا ریٹ اور جو گروتھ ریٹس ہیں ان کا بالکل جنازہ نکل چکا ہے. میرے خیال میں اب بات ادھر سے آگے نکل چکی ہے. اب انٹرنیشنل پاورز جس طرح اشارہ کیا گیا داخل ہو چکی ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی داخلی پالیسی پہ سعودی عرب اور چائنا کا بڑا اثر ہے. ماضی میں یہ اثر امریکہ کا رہا ہے. تو ابھی سری لنکا اور نیپال اور بھوٹان میں ہم نے ایسے مثالیں دیکھی ہیں کہ چائنا کی حمایت سے وہاں پہ رجیم چینج ہوئے ہیں. اسی طرح عمران خان کی گورنمنٹ میں کچھ عناصر کے بارے میں خیال ہے کہ وہ پرو ایران ہے, تو
یہ بات بھی ایک تسلیم شدہ ہے کہ سعودی عرب کے اس حوالے سے خدشات رہے ہیں. اب جو نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے اور جب اس نے خاص کر سعودی عرب کا اشارہ دیا ہے, یہ تمام باتیں ہمیں ایک منظرنامہ دکھاتا ہے کہ آئندہ جب بھی الیکشن ہوں گے اس میں چائنا کا جو ہر پارٹی کے ساتھ ان کے زیادہ اچھے تعلقات ہیں کمیونسٹ پارٹی کے ذریعے, اور سعودی عرب کا پاکستان میں انفلوئنس ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ الیکشن کی تیاری انٹرنیشنل انفلوئنس کے زیر سایہ ہو. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اب کیا ریڈ لائنز رہ جائیں گے اگر پاکستان میں کوئی رجیم چینج باہر کے ممالک کی منشا اور مرضی سے آتی ہے, اگر کوئی الیکشن جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اس میں واقعی ہمیں شیعہ مسلمانوں کے خلاف ایک سوچی سمجھی ٹارگٹ کی کیمپین اور تشدد کی کیمپین ہوا پکڑ چکی ہے, اور یہ عدم برداشت کی جو کیفیت بڑھتی جا رہی ہے ہمارے سڑکوں پر کالعدم تنظیموں کا شور ہمیں سننے میں آ رہا ہے. شیعہ قاتل, شیعہ کافر, یہ روز ہم سن رہے ہیں شیعہ کافر. دیکھیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت ہی حساس اور خطرناک معاملہ ہے. فاریہ صاحب, ایک اور عالم دین کا قتل, ایک اور دینی شخصیت مولانا عادل خان شہادت کے سفر پہ روانہ ہوئے. اگر آپ کے ہاں چنگاری نہیں ہے تو بھارت کیسے اس کو آگ لگا سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی کیفیت ایسی ہوتی ہے. کافر کافر شیعہ کافر, یہ نعرہ ہم نے تو نہیں دیا, یا کوئی یہودیوں نے یا RSS نے یا بجرنگ دل نے تو نعرہ نہیں دیا کافر کافر شیعہ کافر. قرآن شریف میں کہیں لکھا ہے شیعہ سنی؟ نہیں لکھا. قرآن شریف میں کہیں پہ بھی شیعہ اور سنی کا فرق نہیں ہے. لیکن یہ یہودیوں کو گالی دیں, ہندوؤں کو گالی دیں, عیسائیوں کو گالی دیں, بٹ سچائی تو یہ ہے کہ جتنا مسلمان نے مسلمان کا گلا کاٹا ہے اتنی ہندوؤں کی, یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مل کے اتنی اوقات نہیں ہے. آپ تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے آپ کی, آپ ٹک ٹاک بند کر سکتے صرف. وہ تمام کرنے والے بھی پاکستانی ہیں اور وہ سامنے موجود ہیں, اور وہ پاکستان کے شہروں میں ہوا ہے, وہ سوشل میڈیا پر نہیں ہوا. نمسکار دوستو, اب آپ کو پتا ہوگا, نہیں پتا تو ہم یہ پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ 1947 میں جب انڈیا اور پاکستان کا پارٹیشن ہوا نا, تو ہم اس بات کو ہم اتنا پسند نہیں کرتے کہ بھائی یہ بٹوارا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس ٹائپ کی باتیں ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہے. لیکن ذرا سوچئے کہ جس ٹائپ کی سچویشن اس سمے پر تھی, اس میں سب سے زیادہ جو مسلمان آگے تھے نا, مطلب مسلمانوں بھی کئی ساری کاسٹ آتی ہے, تو اس میں جو یہ احمدیہ جو ہے, احمدیہ مسلم, وہ سب سے آگے تھے. لیکن آج وہ احمدیہ مسلم کی کیا حیثیت ہے پاکستان میں, ان کو مسلمان کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا. اب آپ کو پتا ہوگا کہ سیاہ سنی والے بھی میٹر ہے, بریلوی, دیوبندی, یہ سارے سچویشن بھی ہے, وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. اور یہی ہو رہا ہے کہ جب کسی بھی کنٹری میں اسلامک رول لاگو ہو جاتا ہے, پھر وہ اپنے آپ میں لڑنا شروع کرتے ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے چلو مسلمانوں کا شاسن ہو گیا تو اب کچھ ایسا کریں گے کہ انوویشن کریں گے, سائنس میں ترقی کریں گے. ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. یہی بات ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں. ایک اور عالم دین کا قتل, ایک اور دینی شخصیت مولانا عادل خان شہادت کے سفر پہ روانہ ہوئے. تو یہ جو واقعات ہیں, ہم بار بار اپنے پروگراموں میں یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑا جو خطرہ ہے فرقہ واریت کا ہے, اور صبح جو ہے وفاقی وزیر بیان دیتے ہیں اور شام کو یہ واقعہ پیش آتا ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھارت یہ چاہ رہا ہے, کہ بھارت کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر یہ آگ بھڑکائی جائے, تو پھر ہم بحیثیت حکومت, ادارہ اور بحیثیت عالم اور علماء جو ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات کیا ہے کہ ایک تو ٹھنڈے دل سے اس کا انالیسس کرتے ہیں, بھارت کو بعد میں لے کے آتے ہیں. چنگاری آپ کے ہاں ہے تو آپ بھارت آتا ہے نا. اگر آپ کے ہاں چنگاری نہیں ہے تو بھارت کیسے اس کو آگ لگا سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی کیفیت ایسی ہوتی ہے. 2006 اور 2016 کے بیچ میں کراچی میں 25,000 قتل ہوئے. مرنے والے مسلمان, مارنے والے مسلمان. انڈیا نے تو نہیں کرا کچھ, کوئی یہودی تو نہیں آیا, نہ کوئی وہاں سے عیسائی آیا, نہ جارج بش نے کوئی بم مار دیا یا ٹرمپ نے کچھ اٹیک کروا دیا. یہ تو آپ لوگ آپس میں ایک ہی دوسرے گلا کاٹ رہے ہیں. پاکستان از اے نیشن دیٹ از اپ فار سیل. اس کے ماتھے پہ سیل کا ٹھپا لگا ہوا ہے, 90% ڈسکاؤنٹ. وہ ملک بکنے کے لیے تیار ہے. کافر کافر شیعہ کافر, یہ نعرہ ہم نے تو نہیں دیا.
یا کوئی یہودیوں نے یا RSS نے یا بجرنگ دل نے تو نعرہ نہیں دیا کافر کافر شیعہ کافر؟ تو لاہور میں نعرہ لگا کیسے، اسلام آباد میں، کراچی میں نعرہ لگا کیسے؟ 1979 کے ایران انقلاب کے بعد سعودی عرب باقی لوگوں نے تھریٹن فیل کیا، یہاں پر بھی ان کی ایکٹیویٹیز شروع ہوئی، یہ بھی طے ہے، حقیقت ہے۔ سعودی عرب نے بھی آ کے یہاں پر پنجے گاڑنے شروع کیے، پیسہ دینا شروع کیا، دونوں تنظیمیں مختلف بنی آہستہ آہستہ۔ میں آج بہت تفصیل سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عیسائیوں پہ دو مسئلہ ہو جائیں کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر دو مسلمان عیسائی مار دیں یہاں پر کوئی لاہور شہر کے اندر، آگ لگا دیں، زندہ جلا دیں، تو اس کی کوئی خبر نہیں آتی اقلیت تک سے۔ کھڑے ہو کے پاکستان ہو، پاکستان کا میڈیا ہو، پاکستان کی حکومت ہو، کبھی ان دو ملکوں کو کہا کہ تم بکواس بند کرو، ایران اور سعودی عربیہ کو؟ کبھی کہا کہ بندے تمہارے وہاں بیٹھتے ہیں، جا کے پناہ لیتے ہیں، کہاں جا کے پناہ لیتے ہیں؟ کبھی کہا ٹریننگ کہاں لیتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا، ہماری ایجنسیوں کو نہیں پتا تھا، ہمارے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان میں میڈیا نے بھی، پاکستان میں ایجنسیوں نے بھی، پاکستان کی حکومتوں نے بھی اس کو میل ہینڈل میں ہینڈل کیا۔ اب آج کے تازہ واقعات کی بات بتائیں۔ یہاں چیخا ہوں، میں اکیلا بندہ چیخا ہوں، میں نے وہ ویڈیو چلائی، ہمارے شیعہ بھائیوں کے شیخ العلماء جو مرجع ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ دکھ کے اندر پریس کانفرنس کی کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ہم ایک بندے پر پابندی لگاتے ہیں، تم ایک بندے کو اٹھاتے ہو، اٹھا کے اس کی وہاں کرتے ہو، جا کے باہر بھجوا دیتے ہو۔ عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ ان کے سامنے باقاعدہ VIP لانچ کی ویڈیو رکھی گئی ہے کہ کون لے کے گیا اس کو باہر اور کس نے بھیجا؟ تب جا کے آپ کو ہوش آیا۔ ہندوستان اس میں شامل ہے۔ سوشل میڈیا ٹرینڈ میں 90% جو ٹویٹ کیے گئے ہیں اس میں ہندوستانی آئیڈیز نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ تکفیر کا ماحول، توہین کا ماحول، اس کے پیچھے واقعی دشمن کی سازش نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک عرصے سے یہ تکفیر اور تبرہ کی مہم جاری ہے، لیکن حالیہ محرم الحرام یا اس سے پہلے جو توہین ہوئی ہے، اہل بیت کی توہین ہوئی، وہ بھی ان لوگوں نے کی جو پاکستان میں موجود ہیں، پھر جنہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر کہا، وہ پاکستانی ہے۔ اسلام آباد پاکستان کا شہر ہے، پھر کراچی میں جو ہوئی وہ پاکستان کا ہے۔ اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی جو ہوئی وہ تمام کرنے والے بھی پاکستانی ہیں اور وہ سامنے موجود ہیں، اور وہ پاکستان کے شہروں میں ہوا ہے، وہ سوشل میڈیا پر نہیں ہوا، وہ باقاعدہ پروگراموں میں ہوا ہے، اور وہ چیزیں لائیو نشر ہوئی ہیں 5 جگہوں پر۔ اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ بیرونی سازش کو ناکام کس نے بنانا ہے؟ بیرونی سازش کے نتیجے میں خون ہوتا ہے تو اس خون کے کیا ذمہ داری کس پر آئے گی؟ کیا اس بیرونی سازش کا جب پتہ تھا، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم تھا، تو انہوں نے کیا انتظامات کیے اس سازش کو ناکام بنانے کے؟ ہمارے اداروں کی کیا کارکردگی رہی؟ حادثے اور سانے سے پہلے کیا اقدامات اٹھائے گئے؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو سنجیدہ سوال ہیں۔ اس میں ہمیں روایتی بیانات اور دعووں کی بجائے اور بیرونی سازش کہتے ہیں۔ اوقات بھی نہیں ہے آپ کی، آپ ٹک ٹاک بند کر سکتے صرف۔ ٹارگیٹڈ کلنگ جو ہے وہ بھارت کی طرف سے ایک سازش ہے تاکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انتشار پھیلایا جا سکے۔ ہاتھ تو ہمارے ہی ہیں جی، لیکن ذہن جو ہے وہ انڈیا کا ہے۔ Innocently, either consciously or unconsciously, we are playing in the hands of Indian intelligence raw. Exactly. اسی کو ہم ہائبرڈ وار وغیرہ کہتے ہیں۔ میجر صاحب ہیں بھارت کے، یہ پہلے بھی تھا اس کا، یہ بار بار کبھی فرقہ واریت کی بات کرتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ بھارتی فوج نے اور را نے اسی کام پہ لگایا ہوا ہے۔ اگر بھارتی ایجنٹ نے کارروائی کی تو وہ پاکستان میں آیا کیسے، یہ آتے کیسے ہیں؟ اور اگر کوئی پاکستانی انڈین ایجنٹ بنا ہے تو پھر ہمارے ادارے بے خبر کیوں ہیں؟ اکنامیکلی تباہ کر دیا جائے، ان کے اخلاقیات کو تباہ کر دیا جائے، ان کی طرز معاشرت کو تباہ کر دیا جائے، ان کی لڑائیاں ان کے گروپس کے اندر اتنی کرائی جائیں، اور جس پہ انڈیا گزشتہ 50 سال سے بہت
دھیرے دھیرے کام کر رہا ہے. یہی را کا مقصد ہے ان کا. جو اجے دیوال جس کو کہتے ہیں. नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है रॉ के बारे में. जी हाँ दोस्तों, वही रॉ जिसको पाकिस्तान वाले रा कहते हैं. अब उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट किलिंग हो रही है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि भाई हमारे ही लोग रॉ के हाथों बिक चुके हैं. अब ये बात बिल्कुल सच है कि ऐसा ही होता है. अगर जब कभी भी पाकिस्तान को किसी भी मतलब इंडिया को या फिर कहीं कि इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो को या फिर कहीं कि रॉ को आपका कुछ यहाँ पर मिशन करवाने हैं या फिर कहीं कि कोई टारगेट को पकड़ना है या फिर कहे कि उसको थोड़ा ऊपर पहुंचाना है, तो वहीं के लोग यूज करेंगे. और कई सारे आपको कौड़ियों के दाम पर लोग मिल जाते हैं कि भाई जिनको बस पैसे की जरूरत है, अगर हमको आप ठीक तरीके से पैसे देंगे तो आप कर पाएंगे. अब पिछले दिनों ही अगर आप एक महीने में देखो तो कई सारी टारगेट किलिंग पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इवन लंदन के अंदर भी की गई है. और उसमें नाम डेफिनेटली यहाँ पर रॉ का नाम आ रहा है. पता नहीं कि उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हलचल तो बहुत तेज हो रही है रॉ के बाबत. रॉ की अगर बात करें तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है. एक्शन कमेटी ने 2 दिन पहले हुकूमत को मौलाना आदिल और उनके ड्राइवर के कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटों की मोहलत दी थी, जो आज खत्म हो गई है. और ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही किसी जिम्मेदार का तयन हो सका. इसीलिए आज उलमा एक्शन कमेटी ने जुम्मे को मुल्क भर में पुरअमन हड़ताल का ऐलान कर दिया. टारगेटेड किलिंग जो है वो भारत की तरफ से एक साजिश है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंतशार फैलाया जा सके. अब सवाल अपने पैनलिस्ट के लिए ये है कि क्या भारत जो है वो फिरका वारियत को हवा देने के लिए उल्मा को निशाना बना सकता है या नहीं. मेजर साहब हैं भारत के, ये पहले भी ये बार बार कभी फिरका वारियत की बात करता है. इसको लगता है कि भारतीय फौज ने और रॉ ने इसी काम पे लगाया हुआ है कि पहले पाकिस्तान के अंदर चिंगारियां हैं और फिरका वारियत हो सकती है, ये है और ये है, लेकिन गलत फहमी पैदा करने के लिए ये किया जा रहा है. देखें, जो जिसको कहते हैं ना हाइब्रिड वॉर और दूसरी अपना 5th जनरेशन वॉर, वो यही है जी कि वो असले से नहीं लड़ी जाएगी, उसमें जंगो जदल नहीं होगा. वो वॉर जो है जहनों में लड़ी जाएगी जी, कि जहनों के अंदर इतना इंतशार पैदा कर दो, सेक्टेरियन क्राइसिस क्रिएट कर दो, सूबों को एक दूसरे के खिलाफ कर दो जी, और बहुत सारे जो इंटरनल इश्यूज हैं मुल्क के अंदर उस पर लोगों को तकसीम कर दो. तो यही वो कर रहे हैं. अब ये जो अपना कराची में जो अपना आदिल खान जो एक बहुत जय्यद आलम दीन थे, उनको जो मर्डर किया गया है, तो उसका बुनियादी तौर पर जो मकसद है वो शिया सुन्नी फसादात कराने का है थी. और ये सारा का सारा इंडियन जो हाथ तो हमारे ही हैं, लेकिन जहन जो है वो इंडिया का है. Innocently, either consciously or unconsciously, we are playing in the hands of Indian intelligence raw. Exactly. Absolutely. यही रॉ का मकसद है उनका. जो अजय देवाल जिसको कहते हैं दीवाल डॉक्ट्रिन, वो यही है कि बजाय जंगो जदल हो, अंदर से इनके अंदर खोखला करने की कोशिश की जाती है जी. फर्का पैदा कर दो ताकि ये कौम खोखली हो जाए. और लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड इट शुड फॉल लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड. भारत जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, डिक्लेयर्ड दुश्मन है. उसके साथ हमारी जंगें हुई भी हैं और अभी भी हर तरह से खराबी का मामलात मौजूद हैं, नॉर्मल हालात नहीं हैं. लिहाजा दुश्मन से आप दुश्मनी की ही तवक्को कर सकते हैं ना, वो कौन सा वहां से फूल भेजेगा. लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये दुश्मनी का काम जब दुश्मन ने करना है तो हमारे जो पुलिस है, हमारे जो रेंजर्स है, ये जो हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ये घास चरने गई हुई हैं. ये क्या करते हैं? ये वहां पे बैठ के आलू छोले खाते हैं. भारत में ये क्या जो है ये तरीकाकार है कि जब भी पाकिस्तान में कोई गड़बड़ हुई, अच्छा जी इंडिया ने ये किया था, उसके बाद भांग पी के सो जाए. यही काम मुझे बताइए कि इंडिया में क्यों नहीं होता? वहां तो ज्यादा मसालिक के मुसलमान आबाद हैं, वहां तो ज्यादा मुख्तलिफ कौमियतें आबाद हैं, वहां तो ज्यादा मजाहिब के लोग आबाद हैं. जब हमारे यहाँ अमन अमान कंट्रोल करने में हमारे इदारे नाकाम हो जाते हैं यकसर,
तो ये भारत पे इल्जाम लगा देते हैं और उसके बाद आराम से ठंडा ठार करके सो जाते हैं, इस तरह जिस तरह इन्होंने अपने सर से मनोटनो बोझ हटा दिया हो। क्या भारत ने जिन्नों और भूतों के जरिए हमारे लोगों को निशाना बनाता है? क्या वो सरजमीन जो है वो पाकिस्तान की नहीं है? अगर तो बंदे यहीं के हैं तो फिर हमें यहीं पे ढूंढना पड़ेगा। अगर ढूंढने से मौत पड़ती है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करने से मौत पड़ती है, तो क्या आबिद भी क्या इंडियन एजेंट था? वो जो साने है मोटरवे वाला था, अगर भारतीय एजेंट ने कार्रवाई की तो वो पाकिस्तान में आया कैसे, ये आते कैसे हैं? और अगर कोई पाकिस्तानी इंडियन एजेंट बना है तो फिर हमारे इदारे बेखबर क्यों हैं? देखिए बेसिकली देखें, हाइब्रिड वॉर हो या फोर्थ जनरेशन वॉर जो थर्ड जनरेशन वॉर, एक बात बड़ी तय है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने एक दो तीन चीजें तय कर ली थी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। एक तो उन्होंने ये तय किया था कि जो हमने बाउंड्रीज बना ली हैं, बहुत ही को मुश्किल वक्त आ जाए तो हम उन बाउंड्रीज को चेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। और उन बाउंड्रीज के हिसाब से ही हम आजादी देंगे। मतलब हमने अगर अलजज़ायर बना लिया है तो हम अलजज़ायर को आजादी देंगे, सूडान बना लिया तो सूडान, उसके बाद 50s में आकर आजादी है उसको देंगे, लेकिन अगर अलजज़ायर के अंदर कोई चाहता है अलहदा तो फिर नहीं। इसी तरह आप देखें कि जितने मुल्क अफ्रीका के अंदर आजाद हुए हैं, अगरचे कि अफ्रीका को उन्होंने ऐसे काटा हुआ है जैसे केक रख के काटा जाता है, उसके बावजूद भी लड़ाई होती रही है, आधा कबीला इधर है आधा कबीला उधर है, उसकी उन्होंने आजादी। पाकिस्तान का खुद देखें ना कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया को आजाद करने लगे थे तो बहुत आसान था कि वो ट्राइबल सोसाइटी के हिसाब से उस सारे ट्राइब्स को साथ मिला के रख रहे, मतलब गोरगेज जो है आधे ईरान में आधे यहाँ पर हैं, इसी तरह पश्तूनों के बहुत सारे इलाके वजीरिस्तान में और बलूचिस्तान में, लेकिन नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सैंटिटी। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि वॉर अगर होगी तो उस वॉर के ऊपर अगर कोई टेरिटरी किसी और के पास आती है, आप देखें इसराइल के ऊपर क्यों शोर मचा हुआ, वो उसकी, ये इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट है कि वो उसकी हैयत को तब्दील नहीं करेगा। मतलब अगर आप अमृतसर कब्जा कर लेते हैं तो मेरे दादे की कब्र है वहां पर, मेरे दादे का पुराना घर, ये नहीं हो सकता कि मैं जाके दादे के घर कब्जा कर लूं, ठीक, या मेरे ननिहाल अगर किसी और जगह से वो जाए, ये नहीं हो सकता, या को अगर इस तरह, और वो रहेगी हमारे पास, लेकिन उसकी डिस्प्यूट को हम रिजॉल्व कर लेंगे। इसी तरह जब ताशकंद का एग्रीमेंट हुआ तो ये हुआ था कि ये इसका इलाका है, इसको वापस कर दे। सिर्फ छंब और जोड़ियां इसलिए पाकिस्तान के पास रह गया था कि वो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां जितना आगे पीछे हो जाए वो बाद में सेटलमेंट होनी है तो हो जाए। तो उस इशू के अंदर होता था कि हमने जंग जो है उसको रोक। अब रास्ता क्या रह गया? अब रास्ता एक रह जाता है, उस मुल्क को इंटरनली इतना तबाह कर दिया जाए, इकोनॉमिकली तबाह कर दिया जाए। आपका पाकिस्तान मुश्किल में है, आपका जिसको आपने शहरगे कश्मीर कहा था वो कट गई है, अमली तौर पे काट दी गई है गलत पॉलिसियों से। इंडिया उस पर कब्जा कर चुका है मुकम्मल तौर पर। 13 साल लगातार, 12 साल, यार कश्मीर ही हमें लेके दे देते ना, जिस पर अब तक मसला बना हुआ है और अब मुंह दिखा गया है कश्मीर को। यार कश्मीर ही फतह कर लेते भाई, क्या बात करते हैं। हम तो नहीं थे, कोई उनका रास्ता नहीं रोक रहा था, उनकी जुबान आइन और उनका कलम कानून था, कोई रुकावट नहीं थी, कर लेते फतह। तो हमें अपने बयानिया को भी देखना चाहिए कि हम बयानिया क्या दे रहे हैं। जी डेफिनेटली, असल में ये आप देखें ना, ये सारी जंग है, ये बयानिया नैरेटिव की वॉर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा मुश्किल में रहता है, हमेशा उसके खिलाफ साजिश होती रहती है और इसीलिए वो सामने से अटैक कर देता है, चाहे वो 1947 हो, 65 हो, 71 हो या फिर 1999 का कारगिल हो। अब हमेशा ऐसा होता है कि वो अपने सैनिकों को छोड़कर आ जाते हैं। अब पाकिस्तान में तो यही स्टांस है ना कि भाई पाकिस्तानी आर्मी ये है, पाकिस्तानी आर्मी वो है, लेकिन जब रियलिटी आती है, जब फेस करने की बात आती है ना, तब वो दुम धमाके भाग जाते हैं। खास करके कारगिल जैसी सिचुएशन देख लीजिए, वो अपने सैनिक लेने नहीं आए वापस, जबकि पूरी दुनिया को पता था कि ये सारे जो लोग हैं ना वो पाकिस्तानी सैनिक थे। 1971 का देख लीजिए, पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर करके भाग गई और फिर उसको रिजोल्व करने के लिए किसको आना पड़ा? भुट्टो को, जिसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ था। अब कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में एक हवा बनाकर रखा गया था, जो पिछले 1-2 साल में हवा टूट चुका है। लोग फिर भी अगर बोलते नहीं है, लेकिन मानने को तो तैयार हो चुके हैं कि भाई ये जो पाकिस्तानी आर्मी वाला जो सगुफा था ना वो फूट चुका है।
इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हमें अपने बयानिया को भी देखना चाहिए कि हम बयानिया क्या दे रहे हैं। जी डेफिनेटली, असल में ये आप देखें ना, ये सारी जंग है, ये बयानिया नैरेटिव की वॉर है। 13 साल लगातार, 12 साल, यार कश्मीर ही हमें लेके दे देते ना, जिस पर अब तक मसला बना हुआ है और अब मोदी खा गया है कश्मीर को। यार कश्मीर ही फतह कर लेते भाई, क्या बात करते हैं। हम तो नहीं थे, कोई उनका रास्ता नहीं रोक रहा था, उनकी जुबान आइन और उनका कलम कानून था, कोई रुकावट नहीं थी, कर लेते फतह। ये दिस इज वॉर ऑफ नैरेटिव्स। अभी अगर नैरेटिव देखें, ये मुल्क तो यहाँ पे सियासी कशमकश है, इंस्टेबिलिटी है, पीस नहीं है यहाँ पे, तो ज़ाहिर जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस मुल्क में, वो क्यों करेंगे। कोई शख्स भी किसी ऐसे मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेगा जहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, जहाँ पे पीस नहीं है, जहाँ पे इस तरह के झगड़े हो रहे हैं आपस में। तो ये बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन इमर्ज होगी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये थोड़ा सम सेंस शुड प्रिवेल, और इन चीज़ों को नुकसान होगा हमारे मुल्क को, ये इसका फायदा कतन नहीं होगा, और हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में आज भारत का जो गैर कानूनी कब्जा है, भारत के जो अज़ाइम हैं, खित्ते के अंदर हिंदुत्व और अखंड भारत का जो एक सोच लेकर आगे चल रहा है, भारत किस तरह उठा रहा है, भारतीय मीडिया क्या कह रहा है। 370 और 35A की जब बात की जाती है तो वहां पर ये आज एक दिन में नहीं हो गया कि उन्होंने इंतजार किया कि इमरान खान साहब की हुकूमत आए। पंजाब में असल तो लड़ाई पंजाब में होती नजर आ रही है। बुनियादी तौर पे देखें, फौज जो है ना अब सिर्फ पंजाब तक महदूद हो गई है। पंजाब से बाहर आपने देखे, सोशल मीडिया में कहता हूँ कि सबसे बड़ा पोल है, सबसे बड़ा सर्वे है, आप फौज के खिलाफ जहां पर कोई भी पोस्ट लगी हो आप जाके देखिएगा कि आपको कोई एक पठान, कोई एक बलोची, कोई एक सिंधी फौज की हिमायत करता नहीं मिलेगा उस पोस्ट पर, कोई उर्दू स्पीकिंग नहीं मिलेगा, पंजाबी ही आते हैं। और पंजाब में ही असल लड़ाई हो रही है। पीटीआई भी पंजाब में है, मुस्लिम लीग नून भी पंजाब में है, फौज भी पंजाब में है। तो डर यह है कि आपस में अपने घर में लड़ाई बड़े पैमाने पर ना हो जाए। बाकी 3 सूबों में तो फारिग है, वहां तो ये बंदूक के जोर पर रुका हुआ है। अच्छा, फिर अगर नवाज शरीफ साहब ने ये बात की तो इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि जी वो हार रहे थे ख्वाजा आसिफ, उन्होंने आर्मी चीफ को फोन किया और आर्मी चीफ ने उसको शिकस्त से फतह में तब्दील कर दिया। यानी इमरान खान ने वजीर आजम की सीट पर बैठते हुए सारी दुनिया को कहा कि हमारे आर्मी चीफ ने हारने वाले को जितवा दिया, यानी इलेक्शनों में मुदाखलत की। फिर उन्होंने कहा जनाब कि ISI जानती है कि वजीर आजम क्या करता है, उन्हें सब पता है। यानी सारी दुनिया को कहा कि ISI जो है वो वजीर आजम की जासूसी करती है। तो इमरान सिद्दीक अपना, अगर नवाज शरीफ ने कुछ कहा तो इमरान खान ने मोहर तस्दीक शब्द कर दी। अच्छा, लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब एक जुमला कौन है जो ये कहता है एक जुमला कहने की इजाजत दें। वो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो नादानी में कहे जाते हैं, जरूर है ना, और ये जो आपके हैं मतलब नवाज शरीफ साहब और हमारे भी हैं, वो बड़ा सोच समझ कर कहते हैं। एक गलती में कहते हैं ना, और एक जो होता है जानबूझ के करने में बड़ा फर्क होता है। जी मैंने कहा बात बढ़ाने के लिए। जी देखिए सुने, इमरान खान तो नादान है। अगर इमरान खान नादान है तो फिर इस नादान दोस्त से तो दाना दुश्मन बेहतर है। फिर क्यों इसको यहां पहुंचाया गया? देखिए आपने एक बात कह दी, लेकिन जरा मैं तो सोचता हूं ना कि ये नादान इधर कहां पहुंचा दिया भाई। ये नादान और क्या क्या नादानियां करेगा। पंजाब से एंटी स्टैब्लिशमेंट की आवाज जो है उठी है और वो नारा मकबूल हो रहा है। ये और जब एंटी स्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, जैसे सिद्दीकुल फारूक साहब की बातों से बिल्कुल नजर आ रहा है कि वो कहने जी फौज को वो है, तो बहुत खतरनाक खेल नहीं हो रहा। बहुत मतलब हम जैसे लोग कराची में बैठकर, तो इमरान खान ने कर दी थी जी, इंडिया में बैठ के। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इंडिया में बैठ के उसने खतरनाक खेल नहीं हो रहा। एस्टेब्लिशमेंट के माने फौज। मैं जनाब पहले तो साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, उन्होंने भी तस्दीक कर दी कि जी माजी में भी फौज ये कुछ करती रही है, और ये बात दुरुस्त है कि 13 साल अयूब और याया रहे हैं। उसमें हम रात सोए याया खान के इस बयान पर एतमाद करके कि जनाब मजबूत हाथों में दिफा है मुल्क का। सुबह पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान ही नहीं था। फिर ज़ियाउल हक 12 साल रहा, उसमें हम उसके बयान पर जनाब एतमाद करके सोए, सुबह सियाचिन ही नहीं था 82 में।
تو آپ لوگ ساتھ ہوتے تھے، مطلب اس میں مشرف کے 9 سال نہیں، اس میں محترم نواز شریف صاحب نے ایک بات ایک منٹ دیکھیں نا جی، ایک دوسری سوال ہے کہ کیوں ہوتا ہے ایسا، مطلب ہے کہ فوج کو مداخلت کیوں کرنی پڑتی ہے؟ اگر سویلین ادارے مضبوط ہوں، کام کر رہے ہوں، تو کیوں کیا ضرورت پڑے گی انہیں بات کرنے کی؟ جی کیوں کریں بھائی، کیا ضرورت تھی؟ سری لنکا میں مداخلت نہیں ہو رہی کیا؟ انڈیا میں کرپشن نہیں ہوتی؟ صوبے میں تو ایک لمحہ صبر کریں ذرا، بنگلہ دیش میں تو جب سے مشرقی پاکستان بنا ہے پھر اور جو کیا ہوا، بھائی میری بات سنیں، پھر مجھے آپ دیکھیں نا ڈسٹرب نہ کریں، مداخلت نہ کریں، میں آسانی بڑی آرام سے بات کرتا ہوں۔ میں یہ کرتا ہوں کہ کیوں یہ لوگ 33-34 سال آئے، یہ 34 سال کے لیے انہوں نے اقتدار پر قبضہ اگر کیا، امریکہ بھی ساتھ دے رہا تھا، وہ بھی ساتھ دے رہا تھا، کشمیر ہمیں نہیں ملا۔ میں ایک جملہ کہوں گا صدیق صاحب، کشمیر کو کیوں نکالا؟ رشیا میں شنگھائی تعاون کی میٹنگ میں جب ڈیکلیریشن کی بات ہو رہی تھی کشمیر کی، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انڈیا نے لفظ کشمیر کو نکالا، نواز شریف صاحب موجود تھے اور کشمیر کو وہاں سے نکال دیا گیا ڈیکلیریشن سے۔ چلیے وہ ایک بالکل الگ بحث ہوگی، میں چاہوں گا لودھی صاحب کشمیر کو سن لیں، جواب سن لیں، جواب سن لیں، جواب سن لیں۔ یہ 21 فروری 99 جب آیا ہے واجپئی یہاں آ کر، وہ ڈیکلیریشن دیکھ لیں، کشمیر لاہور ڈیکلیریشن، اور اس کے بعد جب پرویز مشرف نے قبضہ کیا تو اسلام آباد ڈیکلیریشن دیکھ لیں 2002 کا۔ جنرل صاحب ایسی بات نہیں ہے، ہم نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور میں نے تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ مذاق تھوڑا ہی ہے کہ آپ مجھے اس طرح کہہ کے چپ کرا دیں۔ اچھا لودھی صاحب ایک تو یہ رسپونڈ کیجیے گا، وہ جا کے دیکھیں اس وقت کیا نام تھا اس کا، ایک منٹ پہلے تو ایوب خان کو دیکھیں، صدیق الفاروق صاحب جو پاکستان کی فوج کا باپ تھا، ذرا اس کو دیکھیں، صدیق الفاروق صاحب 64 میں کیا ہوا، ایک لمحہ 1964 میں آپریشن جبرالٹر کے سارے کاغذات بارڈر سے پار چلے گئے۔ جس دن خدا نخواستہ F-16 آپ کو نہ اویلیبل ہوں، یا آج بھی اگر یہ اویلیبل نہ ہوں، تو پھر آپ درجے نیچے آ جائیں گے۔ یہ پرابلم کیوں ہے؟ ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہیں، جہاز بنانے کے مقابلے میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کار بنانا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہم ایک اچھی کار تک لوکلی پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ نمسکار دوستو، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ بھائی مان لیجئے کہ پاکستان کے پاس فی الحال F-16 ہے جو امریکہ نے بھیک میں دیے ہے کہ بھائی آپ ٹیررزم سے لڑ سکتے ہیں، تو اس کو لیے یہاں پر پاکستان کو F-16 دیے گئے ہیں، فائٹر جیٹ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ لیکن مان لیجئے کہ امریکہ ابھی یہاں پر اس کا جو مینٹیننس ہے وہ کرنا بند کر دیتا ہے، یا پھر F-16 دینا ہی بند کر دیتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو دوسرے بھائی صاحب یہاں پر کمپیئر کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اتنے سالوں تک کچھ نہیں بنا پائے۔ اگر آپ انڈیا کی طرف دیکھو تو انڈیا اچھی خاصی چیزوں میں یہاں پر آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان نے اب تک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ایک بھی کار نہیں بنائی ہے۔ ساری کی ساری جو کارز آتی ہے وہاں پر وہ باہر سے آتی ہے۔ نو ڈاؤٹ انڈیا میں بھی ہے، فاکس ویگن ہے، اسکوڈا ہے، BMW ہے، آڈی ہے، مرسیڈیز ہے، باہر کی کارز ہے، لیکن انڈیا کے اگر آپ بات کرو تو اچھی خاصی کمپٹیشن وہ انٹرنیشنل کارز کو دیتے ہیں، جیسے کہ ٹاٹا ہو گیا، جیسے کہ مہندرا ہو گیا، جیسے کہ ماروتی ہو گیا، کئی ساری اور بھی کمپنیز ہیں جو اچھی خاصی یہاں پر ٹکر دے پاتی ہے انٹرنیشنل۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے، اور پاکستان کے اندر منیمم جو ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بہت سے کمپیریزنز ہو رہے ہیں اور اس پر لکھا بھی جا رہا ہے، یہ جو JF-17 بلاک 3 کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ اس کا سیفلی موازنہ کریں جو فرانس کے رافیل طیارے ہیں، ڈو یو تھنک ان کا آپس میں کمپیریزن ہے؟ اور اگر یہ طیارے پاکستان حاصل کر لیتا ہے اور مینوفیکچر کر لیتا ہے تو ایک امبیلنس ہے اس کو ہم کم از کم ریکٹیفائی کر سکتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں جو بلاک 3 ہے اس کا بلاک 2 جو کہ بن چکے ہیں ان کے ساتھ موازنہ کرنا چاہیے۔ JF-17 کا رول مکمل طور پر مختلف ہے اس سے جو کہ رافیل کا تو رول ہے، یعنی رافیل کو JF-17 کے ساتھ ڈائریکٹ مقابلہ 1 to 1 نہیں کیا جائے گا، رافیل کا مقابلہ کیا جائے گا تو F-16 کے ساتھ کیا جائے گا، جو کہ جس کا رول تقریباً ویسا ہی ہے جیسا کہ رافیل کا ہوگا۔ تو ہر جہاز اپنے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یہ شہزاد چودھری صاحب آپ نے فرمایا کہ دونوں کا ڈائریکٹ کمپیریزن نہیں ہو سکتا رافیل کا JF-17 کے ساتھ، تھوڑا سا ناظرین کے فائدے کے لیے بتائیں گے کہ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے، ایک چیز، اور دوسرا ہمارا جو اب ٹارگٹ ہے حکومت کا کہ 2022 تک یہ جو ہے بلاک 3 یہ آپریشنل ہو جائے گا، تو اس سے پہلے اگر کوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی جنگ ہو جاتی ہے، تو ہماری جو ایگزسٹنگ ہماری ایئر پاور ہے وہ کافی ہے کہ ہم رافیل کا مقابلہ کر سکیں؟
JF-17 का मकसद जो हमारे पुराने प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके अंदर मिराजेस हैं, जिसके अंदर F7 हैं, F7PG हैं, वो जो कि बिल्कुल अब रिप्लेसमेंट के लेवल पे आए हुए हैं, इतना उन्होंने सर्विस दे दी है कि वो रिटायर होने जा रहे हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे JF-17 अपनी जगह उनकी फिल करेगा। उनसे बहुत बेहतर जहाज है, उनसे बहुत बेहतर वेपन लेके जा सकता है और उनसे बेहतर निशानाबाजी कर सकता है, हदफ को बहुत अच्छा अटैक कर सकता है। तो ये चीजें हैं जो कि JF-17 हमारी रोल में फिल करेगा। हमारे वो जो स्पेसिफिक रोल्स हैं जिसके लिए F-16s हैं, जिस तरह के रफाल उस तरफ है, या Su-30 आप समझ सकते हैं। देखिए ये स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी, एयर सुपीरियरिटी के फाइटर्स हैं। JF-17 आधा रोल वो भी करेगा एयर सुपीरियरिटी वाला, लेकिन उस स्ट्रेटेजिक रेंजेस के अंदर शायद नहीं कर पाएगा जो कि हमारे F-16 के अंदर पॉसिबल है, या रफाल के अंदर जो पॉसिबल है, या Su-30 जो दे सकता है। तो अच्छा, शहजाद चौधरी साहब, फ्यूचर की अगर बात करें तो एयर चीफ ने एक ये भी बात की कि ज़ाहिर है कि चीन अब J-20 भी बना रहा है और वो तो कह रहे हैं कि हाईली एडवांस्ड फाइटर जेट है, उस पर भी चीन से बातचीत चल रही है। तो आपके ख्याल में अगर J-20 पाकिस्तान अक्वायर कर लेता है तो वो कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है हमारी एयर पावर के लिए? जिस तरीके से कि आप F-35 का सुनते हैं, जॉइंट स्ट्राइक फाइटर अमेरिका ने जो बनाया, और उसमें यूरोपियन उसके पार्टनर्स भी हैं, उनको भी देगा, अपने नेटो पार्टनर्स को भी देगा, और ये भी जिक्र हो रहा है कि हो सकता है इंडिया की नजर उस पर हो किसी शक्ल में। तो दोनों एयर फोर्सेस में से जिसके अंदर इस किस्म का जहाज F-35 या हमारे पास J-20 की शक्ल में आता है, तो जिसके पास पहले आएगा उसका पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा, रिगार्डलेस कि उसके पास उससे पहले क्या है और क्या नहीं है। अगर जिस दिन खुदा न खास्ता F-16 आपको ना अवेलेबल हो, या आज भी अगर ये अवेलेबल ना हो, तो फिर आप दर्जे नीचे आ जाएंगे अपनी कैपेबिलिटी के अंदर। ये वाजे होना चाहिए। हम खाम में कई दफा बहुत ज्यादा बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, हकायक को मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात हैं। तो हमारे लिए F-16 बहुत ही लाजमी प्लेटफॉर्म है, और उसकी गैर मौजूदगी में JF-17 वो कुछ नहीं रहेगा जो कि JF-17 जिस तरीके से आज जिसको हम कह रहे हैं वो नहीं रहेगा। तो इसलिए ये बहुत ही क्रिटिकल एक एलिमेंट है, इशू है पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ, और वजूहात की बिना पे भी, लेकिन सिर्फ इस एक वजह से भी हमेशा अच्छे रहे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे रहने चाहिए, और हम मुकम्मल तौर पर रिप्लेस नहीं कर सकते। आप अंदाजा लगाइए कि इंडियन एयरफोर्स जो कि 70 to 80% रशियन जहाज़ों पे डिपेंड करती है, और ब्रिटिश फिर बैकग्राउंड के कुछ जहाज हैं उनके पास, जैगुआर्स हैं जिस तरीके से हमें मालूम है, उसके बावजूद उनको रफाल जनरेशन 4.5 के लिए फ्रांस के पास जाना पड़ा। और भी ऑप्शंस थी, लेकिन उनको फिर भी वहां जाना पड़ा लेने के लिए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये हमेशा हम जैसी एयर फोर्सेस और हमारे खत्ते वाली एयर फोर्सेस एक अच्छा हेल्दी मिक्स रखती हैं ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटीज, फिर अपने रोल अपने मिशन के हिसाब से फिर उसके अंदर उस किस्म का मिक्स होता है जो कि हमारा रोल जो है, जो मकसद है, उसको हासिल किया जा सके। हम इंडिया के शायद कलामी हो रही है हमारे पास, क्योंकि वक्त की किल्लत है। मैं आखिर में आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा है, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम क्यों है, हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, ये जो ट्रिकल डाउन क्यों नहीं करती हमारे दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में? फॉर एग्जांपल जहाज बनाने के मुकाबले में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कार बनाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम एक अच्छी कार तक लोकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये गैप क्यों है आपके ख्याल में? मेरा एक तो कमर्शियल स्केल्स की बात है और कमर्शियल प्रॉफिट की बात है, लेकिन यानी विजन की बात है। फिर उस विजन को पूरा करने के लिए आपके पास रिग्स होनी चाहिए, आप मशीनरी होनी चाहिए, ट्रेनिंग उस तरह की होनी चाहिए। ये लेकिन तमाम ये कमर्शियल सेक्टर के काम है, और हुकूमतों को वैसे भी इनसे दूर रहना चाहिए। कमर्शियल सेक्टर में जहाज कोई नहीं बना के देगा हमें। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद, पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद, पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद, ISI मुर्दाबाद, ISI मुर्दाबाद। हम जो उनके आज तक उनका एक नैरेटिव इधर चलता आ रहा था कि किसी को भी मारो तो बेगुनाह को मारो। यहाँ सुजात साहब को मारा गया, यहाँ बाबर कादरी को मारा गया, यहाँ डॉक्टर्स को मौत के घाट उतारा गया, यहाँ इंजीनियर्स को मौत के घाट उतारा गया। वो जो अननोन गनमैन का सिलसिला है, वो नैरेटिव खत्म है। ये अननोन गनमैन अगर यहाँ कोई है तो वो पाकिस्तान के लोग हैं, वो उनके स्टूड्स और उनके लैब डॉग्स जो यहाँ पे बैठे हैं। और हम आज आलमी बरादरी को, जो उनका UN का एक ऑफिस यहाँ पे, उनको ये कहेंगे कि
पाकिस्तान को आलमी बरादरी में ये बोलो कि आलमी बरादरी को बेवकूफ बनाना, मतलब ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं वो बंद कर दो। कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी आम आदमी, कश्मीरी आम शहरी अमन चाहता है। ये प्रोटेस्ट हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जो नेशनलिस्ट कश्मीरीज हैं, जो साइलेंट मेजॉरिटी है मेरे ख्याल से, जिन्होंने हमेशा अब तक अपनी जुबान बंद रखी खौफ की वजह से, दहशतगर्दी के खौफ की वजह से, जो बॉर्डर पार से होता है, जो सर पार से, जो वहाँ से पाकिस्तान से आते हैं इन्फिल्ट्रेट होके और जो यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनके डर से जो हमारी जुबानें बंद थी इतने सालों से, उसका एक रीजन ये भी है कि यूनाइटेड नेशंस ने कभी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को कंडेम किया ही नहीं। सरपंच हो, जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, जो इन लोगों को कैटेगराइज करके इनके नाम की हिट लिस्ट निकाली जाती है, फिर इनको फॉलो किया जाता है, फिर अननोन गनमैन ने मार दिया ऐसे बोल के केस को बंद किया जाता है, क्योंकि किसी ने अगर अपनी जुबान खोली तो उसे भी टारगेट किया जाता है। इस सब से अब हम परेशान हो चुके, 73 इयर्स हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, अब पीओके में पहले कोई समय पर 6 बार महीने में एक बार ऐसा हो जाता था कि वहां की जो जनता है वो थोड़ी त्राहिमाम हो जाती थी या फिर फ्रस्ट्रेट होकर पाकिस्तान के खिलाफ उनकी आवाज उठती थी। लेकिन अभी आए दिन होने लगा है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ, इवन पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भी, पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर तो अब ये हो रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भी अच्छे नारे लगना शुरू हो गए, अच्छे नारे इन द सेंस कि भाई पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद या फिर मर्डरर है, सब कुछ, मतलब यहाँ पर ये बात हो रही है। और यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि कब तक हम ऐसी चीजों को हम सहेंगे कि तो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है, मतलब पीओके उनके पास है, गिलगिट उनके पास है, जो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है वहां पर जिस तरीके से सेवाएं दी जाती है, सर्विस दी जाती है, खास करके पाकिस्तान के पंजाब में, लाहौर जिस स्टेट का सिटी है, उस राज्य में बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती है। जबकि सो कॉल्ड जो उनका आजाद कश्मीर है, या फिर कहते हैं कि जो इवन वो छोड़िए, इवन वो बलूचिस्तान या फिर सिंध में भी उस टाइप की सेवा नहीं दे पाते या फिर अपनी जनता को खुश नहीं रख पाते जिस हिसाब से वो लाहौर के आसपास करते हैं। यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई पीओके अब धीरे धीरे सुलग रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। किसी मजबूर और कलाकारी बनाने पर तफरीक को नहीं मानते और हम रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी, खुद मुख्तारी और वहदत की बहाली के लिए जदोजहद करने का ऐलान करते हैं। और हम ये वादा करते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर को पर कब्जा करने का खौफ देखना छोड़ दे। आज का दिन 22 अक्टूबर है, ये वो है जिसको समस्या के तौर पे हम कंडेम करते हैं। और आज के दिन जुलाई करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए और अपने नाकाम को जब हमारी बात करते हुए भी रखे और जब उन्होंने छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। जो हमसे टकराएगा टकराएगा हो जाएगा। SOS इंटरनेशनल जिंदाबाद, SOS इंटरनेशनल जिंदाबाद, SOS इंटरनेशनल जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, छीन के लेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो।
जो CPEC बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, उसमें बहुत बड़ा रेल मार्ग और सड़क मार्ग बन रहा है, उसमें मेरे लोगों की ज़मीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, हम बोनाफाइड हैं, हमसे पूछा नहीं जा रहा, तो हम ये कहते हैं कि बनाने से पहले हमें पूछा जाना चाहिए था। पाकिस्तान का कोई लीगल राइट नहीं है उस पर, चाइना का कोई लीगल राइट नहीं है, उसके बावजूद वो लोग वहाँ बना रहे हैं। इसको वर्ल्ड बैंक या जो भी लोग इसको सहायता दे रहे हैं उनको भी कहना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाकर इसको रोका जाना चाहिए। और मेरे लोगों की ये डिमांड है कि उनके साथ इंसाफ हो और सरकार जल्द से जल्द उस इलाके को खाली कराए, और जब तक इलाके को खाली नहीं कराती तब तक पाकिस्तान के खिलाफ भी एक मुकदमा होना चाहिए, जिसने हमारे 70,000 हिंदू और सिखों को गाजर मूली की तरह काटा एक योजना के तहत। और इसके अलावा जो मेरे लोग जो CPEC बन रहा है उसको भी रोकने की डिमांड करते हैं कि भारत सरकार आगे बढ़कर इसको रोके। जुर्म लगभग जो है वो मिलता जुलता है पाकिस्तान और श्रीलंका का। चाइना को उसके ऊपर एतराज था, लेकिन फिर श्रीलंका ने क्या किया, उसको अंदाजा है कि उसकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती इंटरनेशनल प्रेशर को, और चाइना बाहर से बैठकर उनका मुल्क नहीं चलाएगा। उन्होंने फिर एक बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, गौतम अडानी, गुजरात बेस्ड है, उनको 2 बड़े प्रोजेक्ट्स दिए। और अभी जो डंडे जूते पड़ेंगे IMF के, इसके बाद अभी जो महंगाई आनी है, अभी लोड शेडिंग, गैस का ना होना, बिजली का ना होना, महंगाई का हो, अभी ऐसी आएगी, भूल जाएंगे 3.5 साल की सख्तियां आपको। उस वक्त फिर खुद मुख्तार। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो श्रीलंका और पाकिस्तान की कमोविश जो सिचुएशन है ना, वो सेम जैसी है। सेम जैसी इन द सेंस कि अभी कुछ ही महीनों पहले जो श्रीलंका है वो डिफॉल्ट हो गया था, और फिर उसको बचाने का काम इंडिया ने किया। हालांकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान उस सिचुएशन से वर्स्ट ही हो रहा है। मतलब वहाँ की कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और दिन ब दिन वहाँ पर सिचुएशन खराब होती जा रही है। अब खराब होती जा रही है, उसके पैमाने क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया जिस हिसाब से डॉलर के सामने टूट रहा है, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो बढ़ रही है, महंगाई, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर रोज लोग 70 से 80 हजार लोग ये आवेदन देते हैं कि उनको पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना है। ये सारी चीजें हमें बताती है कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत खराब चल रही है। हालांकि उसके सामने अगर देखो, श्रीलंका की बात करो तो श्रीलंका को अच्छी खासी तरीके से इंडिया ने हैंडल कर लिया है, या फिर उसको बचा लिया है। चाइना जिसका फेवर किया करता था श्रीलंका, अब उसको पता चल गया कि भाई नहीं, चाइना हमें यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो पाकिस्तान को भी ये समझ है, लेकिन वो अब ऐसी सिचुएशन पर है कि वापस नहीं आ सकते। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। तो साउथ एशिया है, वहां पर पाकिस्तान और फिर श्रीलंका, ये 2 मुमालिक हैं जहां पर बड़ा जबरदस्त किस्म का सियासी अदम इस्तेहकाम है। क्या सिमिलैरिटी है, किस तरह की मुशाबहत है इस वक्त जो श्रीलंका में वाकयात हो रहे हैं? अगरचे इंटरनल फैक्टर्स जो हैं, जो अंदरूनी अवामिल हैं, वो मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के, लेकिन जुर्म लगभग जो है वो मिलता जुलता है पाकिस्तान और श्रीलंका का। कि मार्च का पहला हफ्ता जिस वक्त पाकिस्तान ने ये फैसला किया, और पाकिस्तान की तरह 35 मुमालिक थे जिन्होंने ये फैसला किया कि वो एब्सटेन करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में अमरीका एक करारदाद लेकर आया यूक्रेन के मामले है। श्रीलंका चलता है अपने टूरिज्म पे, श्रीलंका चलता है अपनी जो चाय और दीगर जो ज़रूरी अजनास हैं उनकी एक्सपोर्ट पर। उनको बहुत प्रॉपर पावरफुल इकोनॉमी नहीं है, ट्रांजिट के ऊपर अपने पोर्ट्स से वो पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसा जाहिर है कि उसमें कभी कमी कभी ज्यादती होती रहती है। लेकिन श्रीलंका जो है वो अचानक जिस वक्त वो BRI का हिस्सा बना, तो साथ ही वो बन गया जो इंटरनेशनल प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड है चाइना और अमरीका के दरमियान। इंडिया इसमें बड़ी हद तक शामिल है। अब श्रीलंका, इसको कहा जाता है बहरे हिंद का मोती, यानी कि पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन। इंडिया और जापान $700 मिलियन से बना रहे थे, जो उनका वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है वो बना रहे थे, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बना रहे थे $700 मिलियन से, और ये 2 से 3 किलोमीटर दूर था चाइना के प्रोजेक्ट से। चाइना को उसके ऊपर एतराज था, लेकिन फिर श्रीलंका ने क्या किया, उसको अंदाजा है कि उसकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती इंटरनेशनल प्रेशर को, और चाइना बाहर से बैठकर उनका मुल्क नहीं चलाएगा। उन्होंने फिर एक बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, गौतम अडानी, गुजरात बेस्ड है, उनको 2 बड़े प्रोजेक्ट्स दिए ताकि वो थोड़ा सा मामला जो प्रेशर है उसको ईज किया जाए। एक उन्होंने किया कि जनाब जाफना पेनिनसुला के साथ ही
रिन्यूएबल एनर्जी का ही प्रोजेक्ट जो है वो गौतम अडानी को दे देते हैं। उसके बाद वो एक प्रोजेक्ट ईस्ट कंटेनर की बजाय वेस्ट कंटेनर टर्मिनल जो थोड़ा सा दूर बनता है वो भी गौतम अडानी को दे देते हैं, जिसको 35 साल के एग्रीमेंट करते हैं कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के तहत, और उसमें मेजर स्टेक होल्डर गौतम अडानी है। 51% उनके पास शेयर हैं, वो रखेंगे, ऑपरेट करेंगे, इंडियंस वहां पर आएंगे और एक चेक मौजूद रहेगा कि वहां पर यह बताया जाता है कि फॉरेन जो रिजर्व्स हैं वो तो इतने रह गए हैं कि श्रीलंका 1 महीने तक चल सकता है, उसके बाद तो श्रीलंका के पास पैसे नहीं है। उनको डीजल की सप्लाई भी रुक जाती है, उनकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो मुतासर होने लग जाती है और फ्यूल शॉर्टेज स्टार्ट होती है। अब जब फ्यूल शॉर्टेज होती है तो उससे बिजली का बुरहान आ जाता है, लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और एक शोर मचता है, लेकिन फिर प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। किया जा सकता था। इस दौरान इंडिया ने $1 अरब की क्रेडिट लाइन दी। आपको याद है जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गए थे तो पाकिस्तान ने भी कहा था $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन हम दे रहे हैं, बहुत से दुनिया के ममालिक देते हैं। वो प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के साथ, जो ये खान ने प्राइसेस जो रिलीफ दिया था, सियासी शोबदाबाजी। अब टाइम आ गया, बड़ा शौक है ना अमेरिका की गुलामी नहीं करनी, और ताने यानी जो आदमी सेंस की बात करे उसे कहते हैं अमेरिका का गुलाम है। यार ऐसा झूठों का टोला, फ्रॉडियों का, ये रंगबाजों का आया, बड़ी मुझे खुशी हुई। आज उसने फैसल सईद ने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की है, साफियों ने गालियां दी हैं उसको, भाग गया वहां से। वो ये डाकू और चोर लुटेरे दूसरों को गालियां दे। आज एक कॉल आई इमरान खान को, उसने कहा कि तुम भाग गए हो, शुक्र है कोई एक यानी कोई क्रिटिक की भी कोई असल लाइनें खोलो। लोग जो इस वक्त गलियों में सड़कों पे इमरान खान पे बातें कर रहे हैं वो उसको लग रहा है कि झूठा, उसके कान सुने कि लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये इनकी कहानियां, ये मतलब है जुआ कराते हुए वक्फा बराए नमाज करने वाले लोग, इससे ज्यादा मुनाफिक, तस्बीह पकड़ के यानी बदतरीन झूठ बोलने वाले, एहसान फरामोश लोग, इन्हें चैलेंज करने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान का इज्तिमाई ज़मीर इतना मर गया है, तो बहुत खुशी हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग चैलेंज कर रहे हैं। अब इनको ये आए इलेक्शन कैंपेन में, इनको लग पता जाए, और इनके जो पीछे आर्टिफिशियल बाबे बैठे हुए हैं, को अजीबोगरीब किस्म के, वो यानी कब्रों में टांगे लटकाए बकवास कर रहे हैं। रद्द अमल ऐसा आना चाहिए। इनकी जरूरत कैसे है कि उसकी हिमायत में बात कर रहे हैं। और अभी जो डंडे जूते पड़ेंगे IMF के, इसके बाद अभी जो महंगाई आनी है, अभी लोड शेडिंग, गैस का ना होना, बिजली का ना होना, महंगाई का वो अभी ऐसी आएगी, भूल जाएंगे 3.5 साल की सख्तियां आपको। उस वक्त फिर खुद मुख्तार वो अकल की बात कर रहा है एक आदमी। अदानी ग्रुप ने, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कंटेनर कार्गोज रिसीव नहीं करेंगे। अगर अदानी ग्रुप श्रीलंका में चाह रहा है, अदानी ग्रुप जो है इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितने बड़े पैमाने पे शायद ये पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान को अब कितना भी गंदी सिचुएशन में डाल दो या फिर कहे कि बेरोजगारी, महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, इकोनॉमिकल सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन वहां का जो 2 नंबर का धंधा है ना, वो वैसे ही चलता रहेगा। और जैसे जैसे इकोनॉमिकल सिचुएशन पाकिस्तान की खराब होगी, वैसे वैसे पाकिस्तान के अंदर 2 नंबर का धंधा बढ़ेगा। अब कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि गुजरात में जो अदानी वाला पोर्ट है, उसमें मतलब करोड़ों की ड्रग्स मिली थी। अब वो जो कार्गो आ रहा था, वो ईरान से, अफगानिस्तान और ईरान वहां से आ रहा था। मतलब अफगानिस्तान का कोई समुद्री कोई वहां पर पोर्ट नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान का सामान पहले ईरान गया और ईरान से फिर वो चढ़ा कार्गो में और फिर वहां से आ रहा था और वो वाया पाकिस्तान होकर आया। तो यहाँ पर उसके बाद भाई अदानी की तरफ से स्टेटमेंट आई कि भाई ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी सामान आता है तो हम उसको रिसीव नहीं करेंगे। अगर रिसीव नहीं करेंगे तो फिर इंडिया के अंदर ड्रग्स आने की कोई बात है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि इंडिया के इस टाइप के जो बिजनेसमैन है, अगर वो चाहे ना, तो पूरी तरीके से पाकिस्तान को, जो बचा कुचा पाकिस्तान है, उसको भी बर्बाद कर सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और जिसमें हमने ये बात की थी कि इंडिया का जो अदानी ग्रुप है उसने वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल कोलंबो पोर्ट पे ले लिया है और वो डेवलप करेंगे, उनकी डील हो गई है श्रीलंकन अथॉरिटीज के साथ, जिसमें उन्होंने 51% जो शेयर्स थे वो लिए थे। और ये एक जाहिर बात है बड़ा स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे ये पोर्ट है श्रीलंका का। और अगर आप ये समझें कि इंडिया का एक इन्फ्लुएंस है जो कि मजीद श्रीलंका पे है। आज मैं इंडिया श्रीलंका पे बात करूंगा और जिसपे इंडियन
इंडियन आर्मी चीफ भी आज श्रीलंका गए हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है व्यूअर्स के अदानी ग्रुप ने, जो कि अदानी पोर्ट्स सबसे ज्यादा एक पोर्ट ऑपरेटर है और जो इंडिया के एक बड़े ग्रुप में शुमार होता है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कंटेनर कार्गोज रिसीव नहीं करेंगे फ्रॉम नवंबर 15। अच्छा, अब ये जो चीज है ये किस तरह, क्या एक ग्रुप इस तरह कर सकता है? क्या उसको स्टेट, जारी बात है उसके पास अगर राइट्स हैं तो वो कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने पोर्ट ली हुई है, गवर्नमेंट से अथॉरिटीज हैं उनके पास है। अब हुआ यूं है कि पिछले कुछ वीक पहले अगर आपको याद हो तो एक बड़े पैमाने पे कुछ 3 टन हेरोइन जो थी अफगानिस्तान से इंडिया गई वाया ईरान, जो कि एस्टिमेटेड कहा जाता है $2.65 बिलियन की थी। और ये जो वेस्टर्न गुजरात के मंद्रा पोर्ट पे आई, जो कि इसको अदानी पोर्ट ही चलाते थे। अब डेवलपमेंट ये है व्यूअर्स, उन्होंने कहा है जी कि ये अदानी पोर्ट्स ने कहा है कि हम ये अलाउ नहीं करेंगे और हमारे पास ये राइट्स हैं और हम ये कर सकते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो शिपिंग गई थी ये बेसिकली बंदर अब्बास पोर्ट जो ईरान की है वहां से गई गुजरात मंद्रा पोर्ट पे। और अच्छा, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है जी, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान इन्वॉल्व हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि वो भी आने बंद कर देंगे, वो रिसीव नहीं करेंगे। अच्छा, इसका जरा कॉन्टेक्स्ट देखें। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इन्होंने थोड़े दिन पहले श्रीलंका के ऊपर भी 51% जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है कोलंबो पोर्ट का, उसके राइट्स लिए हैं। 2 चीजें हो गई। अब आप देख सकते हैं कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या ये ऐसे मुमकिन है कि इंडियन जो है अदानी ग्रुप जो है वो पाकिस्तान को या हमें ये कहे कि भाई अब आप जो है वो अपनी कंटेनर्स हैं या जो आपकी वो ट्रेड है वो अब वहां भी नहीं जा सकती, श्रीलंका में भी नहीं जा सकती। सो ये एक बेसिकली एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है। और अगर मैं इसको ये कहूं कि इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात अमूमन लोग शायद ये समझते हैं कि बुरे हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं और माजी में कुछ चीजें थी, लेकिन लग ये रहा है कि अगर अदानी ग्रुप श्रीलंका में जा रहा है, अदानी ग्रुप जो है इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितने बड़े पैमाने पे शायद ये पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और अगर पाकिस्तान इससे इन्फ्लुएंस होता है तो किस तरह होता है। और हमें इसमें ये देखना ये है कि जो इंडियन इन्फ्लुएंस कि मैं आपको बताता हूं कि डेवलपमेंट के हवाले से पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली किस तरह इंगेज हैं। और आज क्योंकि इंडियन आर्मी चीफ कोलंबो में गए हैं कल, यानी कि अब आप इसको भी देख सकते हैं कि अपना वो डेलीगेशन लेके गए हैं। और अगर आपको याद हो कि जो मित्रा शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है उसको भी देखेंगे और बायलैटरल्स पे भी बात करेंगे। और ये एक 5 दिन का आप समझें कि जो ट्रिप है ये बहुत लंबा ट्रिप है जिसमें वो वाइड रेंज ऑफ डिस्कशंस कर रहे हैं। भारत ने बहुत बड़े अजीबोगरीब किस्म के हथियार जो हैं गुज़िश्ता 1 साल के अंदर खरीदे हैं। सर, लड़ाई के इम्कानात हैं। हमारा जो हमें मुकाबला है वो हमारा एक नरेंद्र मोदी जैसे आदमी के साथ है। अखंड भारत या जो बड़ा भारत था उसको लेके आगे चलना चाहता है। मोदी उसमें वो कोई भी एडवेंचर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर डर दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है कि वैसे तो इंडिया 6, 7, 8 गुना था ही, उसके अलावा इकोनॉमी वाइज भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है इंडिया की, 3.5, 4 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है इंडिया की।
और उसके अलावा अगर इंडिया की आर्मी काउंट करिए, नेवी काउंट करिए, एयरफोर्स काउंट करिए, इंडिया के पास जो हथियार है वो काउंट करिए, ऊपर से इंडिया धीरे धीरे करके जितने भी हथियार यूज कर रहा है उसमें खुद इंडिपेंडेंट बन रहा है, अगर उसकी सिचुएशन आप देखो तो पाकिस्तान कहीं पर भी आसपास भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो कि हमेशा ये मतलब बातें करता रहता है कि भाई हमारा जज्बा बहुत ज्यादा है। अब मान लीजिए कि 100-200 पाकिस्तानी सैनिक आ रहे और बीच में एक ब्रह्मोस गिर गई तो वो सारा का सारा जज्बा जो बाकी के पाकिस्तानी सैनिक है वो तो मारे ही जाएंगे, वो जो 100-200 है, लेकिन पीछे के आने वाले जो सैनिक है ना उनका जज्बा भी नीचे बैठ जाएगा। और जज्बे से सब कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान का जज्बा भी है तो उससे कुछ नहीं होता, वो सीधे मतलब कि ठोके जाएंगे। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि इंडिया बहुत ही अग्रेसिवली हथियार इकट्ठा कर रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्मल हालात में कभी इतनी जंगी तैयारियां नहीं देखी जितनी हमने कोविड के दौरान देखी, चाइना की तरफ से, इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। 2021 में कोई इस किस्म का एडवेंचर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हो? मेरा ख्याल है, देखिए, हमें 50-50 इसका चांस रखना चाहिए। मैं मुकम्मल तौर पे इसको रूल आउट नहीं करूंगा। वजह यह है कि हमारा जो हमें मुकाबला है वो हमारा एक नरेंद्र मोदी जैसे आदमी के साथ है और एक ऐसे सियासी निज़ाम के साथ है जो कि एडवेंचरस है, एडवेंचरिज्म में बिलीव करता है, एक्सपेंशनिस्ट है, अपना फैलाव करना चाहता है और फिर एक अखंड भारत या जो बड़ा भारत था उसको लेके आगे चलना चाहता है। उसके निज़ाम में, उसकी सोच में आज़ाद जम्मू कश्मीर भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, अक्साई चिन भी है। यानी अंदाज़ा लगाइए कि किस किस्म की सोच लेके चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक वहाँ पे कोई थोड़ा ठहराव नहीं आता उनकी सियासत में, उनकी लीडरशिप में, उनके अंदरूनी मामलात में, जिसकी वजह से वो फिर बाहर की तरफ ज़्यादा ध्यान कोशिश करते हैं बटाने का, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ऑन टॉप ऑफ द गेम रहना पड़ेगा, ऑन द बॉल रहना पड़ेगा। हम अपना फोकस हटा नहीं सकते। भारत ने बहुत बड़े अजीबोगरीब किस्म के हथियार जो हैं गुज़िश्ता 1 साल के अंदर खरीदे हैं। चाइना ने बड़े जबरदस्त हथियार इंट्रोड्यूस करवाए और 60,000 फौजी चाइना का, 60,000 भारत का इस वक्त मौजूद है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। दूसरा, पाकिस्तान की जानिब से भी लगातार तैयारी और एक्सरसाइज हो रही है। ये नॉर्मल नहीं लगता भट्टी साहब देखने में, आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अपनी वजह से, जिसमें उसकी वजह से हम पीछे रह गए, जिसमें कोलालमपुर में वो उन्होंने अमेरिका ईरान सालसी करवाने के चक्कर में पड़ गए, उसके अलावा उर्दवान को हीरो बनाने के चक्कर में पड़ गए और उर्तुरल दिखाने के चक्कर में पड़ गए। और ये जो इसमें डैमेज हुआ है इसी का खटिया खा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी वहां बैठे हुए। तो अब ये डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। और सर, लड़ाई के इम्कानात हैं भट्टी साहब, खारजा पॉलिसी जो है, लड़ाई के इम्कानात हैं, आपको लगता है लड़ाई के इम्कानात हैं? जंग के इम्कानात की बात करें, मोदी उसमें वो कोई भी एडवेंचर कर सकते हैं। तो ये जो 2021 है, ये मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह करे कि अमनो अमान भी बेहतर हो। वो 71 का मामला आया तो हम सुनते रहे कि 7वां बेड़ा आ रहा है और अब वो बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया, अब चिटागांग पहुंचने वाला है। वो बेड़ा पहुंचा ही नहीं जब तक कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं हो गया। कि चाइना से फैसला करो, भारत की जनूबी एशिया में बालादस्ती कबूल करो, कश्मीर को भूल जाओ और अमेरिका भारत इत्तेहाद के मातहत एक रियासत बन के। हमें कैमरून मंटर ने अगले दिन एक मैसेज दिया था कि आपकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अब वो नहीं रही जो हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, 1971 पाकिस्तान कई बार याद करता है क्योंकि देखिए 1947-48 की लड़ाई वो कहता है कि नहीं हम नहीं हारे, 65 हम जीते थे, कारगिल तो हमने नहीं किया, लेकिन 71 की वॉर में उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं ये एक्सेप्ट करने के अलावा कि भाई हम यहाँ पर पूरी तरीके से हार चुके थे और बांग्लादेश जैसा एक भाग जो था, मतलब एक ईस्ट पाकिस्तान जो था वो हमसे अलग हो गया और एक अलग कंट्री बना और उसमें उनको एक्सेप्ट करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। जब ऐसी सिचुएशन को आप ध्यान में रखते हो तब पाकिस्तानी कई बार ये कहने पर मजबूर होते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका हमें सपोर्ट करता था और ये कहा जाता था कि अमेरिका का जंगी बेड़ा जो है वहां से निकल चुका है, फिर वो बंगाल की खाड़ी में आ चुका है, फिर अब वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन रशिया की एक धमकी के सामने अमेरिका चुप हो गया और कुछ नहीं कर पाया और 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही पाकिस्तान ने अपने हथियार डाल दिए। वो न्याजी ने, जो इमरान खान का सगा था,
उसने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया, और उसके बाद वो सरेंडर वाली फोटो तो हम सबको पता है। कहने का मतलब ये है कि काम निकलवाना आना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान, अमेरिका उस समय सपोर्ट करता था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को आया नहीं कि भाई उसके अपने कार्ड्स कैसे खेले जाएं। इंडिया अच्छी तरीके से जानता है, तो रशिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूरोप हो या फिर अमेरिका हो, हर किसी से अपना काम निकलवा लेता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान ने जो पॉलिसी थी सारे अंडे एक ही टोकरी में, वो खत्म कर दी अब? आई विश इमरान, मेरी ये दुआ है कि हम इससे सबक हासिल करें और तमाम अंडे एक टोकरी में ना डालें, और यही एक वाइज ऑप्शन है। हमें कैमरून मंटर ने अगले दिन एक मैसेज दिया था कि आपकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अब वो नहीं रही जो हुआ करती थी। तो अगर हम इस डायरेक्शन पे कायम रहें, तो अमेरिका भी अपने पार्टनर का इंतखाब कर चुका है। उन्होंने हमें यूएसएसआर के खिलाफ और फिर अफगानिस्तान के अंदर जो 9/11 हुआ, उस दोनों मौके पर और बगदाद पैक्ट से लेके आज तक अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया है, लेकिन हम डुप्लिशस के डुप्लिशस ही रहे। हमें कहा गया कि आप डुप्लिशस हैं, आप रिलायबल पार्टनर नहीं हैं। अब उन्हें अपना चॉइस पार्टनर मिल गया है इंडिया की सूरत में, और अब वो चाइना को कंटेन करने के लिए एम्ब्रेस, जिसे स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस कहते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ कर चुका है। अब जब ये दोनों डायरेक्शंस का तयन हो चुका है, तो अब इसमें वेवरिंग या रीथिंकिंग नहीं होनी चाहिए। अब इन रिलेशनशिप को आगे लेके चलना है। रशिया का यही है कि वो इंडिया में जरूर गए हैं, क्योंकि एक तो इंडिया की 65% मिलिट्री हार्डवेयर आज भी रशियन है, और फिर S-400 का मुआहदा भी उन्होंने रशिया के साथ किया हुआ है। एग्जैक्टली। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात का आगाज होता है 1950 में। हमें इन्विटेशन रशिया से भी आया और अमेरिका से भी आया, तो वी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन ऑफ अमेरिका। रशिया का इनकार कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रूमन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जब अपना 65 की वॉर हुई, ऑल्दो वी वर ट्रीटी बाउंड विद अमेरिका, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो हमारी सपोर्ट में आता, तो वो अपना अमेरिकन बिकेम न्यूट्रल। उसी neutrality sometimes become the rascality. You see, it was the responsibility of America. We were treaty bound militarily with them. They should have supported us, but they never did it. 71 का मामला आया तो हम सुनते रहे कि 7वां बेड़ा आ रहा है, और अब वो बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया, अब चिटागांग पहुंचने वाला है। वो बेड़ा पहुंचा ही नहीं जब तक कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं हो गया। फिर इनको जरूरत पड़ी अफगानिस्तान में, वहां हमने इनके जिसको ये अपने दुश्मन समझते थे रशिया को, उसको हमने मार भगाया, और रशियन एम्पायर फेल लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड व्हेन दे ओवरस्टेड इन अफगानिस्तान, तो दे वर क्रिपल्ड अंडर देयर ओन इकोनॉमिक वेट। तो उसमें हमने रोल प्ले किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि सोवियत रशिया जो था वो ब्रेकअप हो गया। अपना सेंट्रल एशियन रियासतें आजाद हो गई, अपना ईस्टर्न यूरोप आजाद हो गया, वॉल ऑफ बर्लिन गिर गई, कुछ करके दे सकता है जर्मनी यूनिफाइड हो गया, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। तो चीज ये है कि हमारा जो माजी में अमेरिकन के साथ जो रहा है रिश्ता, वो खासा ट्रिकी रहा है। अब चीजें डेवलप हो रही हैं कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना, टर्की, ईरान कंट्रीज जो हैं, दे आर कमिंग टुगेदर। उधर इंडिया जो अमेरिका है, वो इंडिया और रशिया, और पिछले दिनों में तो सऊदीज भी काफी उनके बगल बच्चे बने हुए थे। बहरहाल ये ग्रुप्स अमर्ज हो रहे हैं। भारत ने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम करके 4 दिफाई मुआहदे कर लिए हैं। वो रशिया के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से बड़े पैमाने पर असला खरीद रहा है। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए नए खतरात जन्म ले चुके हैं। अमरीकी माहिरीन तो खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर अमेरिका के लिए अहम होना है तो इसे खुद को बहुत तब्दील करना पड़ेगा, यानी अपनी पॉलिसीज में बेसिक और फंडामेंटल चेंजेस लानी होंगी। अब इन बुनियादी तब्दीलियों का आसान अल्फाज में मतलब यह है कि चाइना से फैसला करो, भारत की जनूबी एशिया में बालादस्ती कबूल करो, कश्मीर को भूल जाओ, और अमेरिका भारत इत्तेहाद के मातहत एक रियासत बन के रहो। अब ऊपर बयान किए गए ये वो बुनियादी सवाल या इश्यूज हैं जिनका हम बैरूनी महाज पे
सामना कर रहे हैं और ये काफी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारे लिए सबसे बड़ा मसला भी बनी हुई है। हर कोई हमें अपनी जानिब घसीटने और खींचने के चक्रों में है। अमेरिका और चाइना के अलावा अरब ममालिक भी हम पर जोर लगा रहे हैं। तो पर्सनली मैं समझता हूं कि हमारा जो इस वक्त जो ट्रेंड होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए टुवर्ड्स आवर नेबर्स। सी चाइना, जैसे कि अभी जनरल एजाज ने कहा कि चाइना को हमारी जरूरत है और हमें चाइना की जरूरत है। जहां पॉलिसीज देखे, डिप्लोमेसी में ना परमानेंट दुश्मनी होती है ना परमानेंट दोस्ती होती है, वहां जब कन्वर्ज कर जाती हैं इंटरेस्ट सी तो दैट इज ए गुड फॉरेन पॉलिसी। तो हमारी इस वक्त जो इंटरेस्ट है वो चाइना के साथ कन्वर्ज कर चुकी है। चाइना नीड्स अस, वी नीड चाइना। चाइना का जो डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये जो रिलायबल पार्टनरशिप की बात हो रही है, इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो नई दुनिया बन रही है, जो नए इत्तेहाद बन रहे हैं, इसको हम अपनी कोई माशी जीत के अंदर बदल सकेंगे इस स्ट्रक्चर के साथ? पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस तो आप पहले खुद भी बताते रहे हैं, और भी बहुत सारे दोस्तों की नजर में पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान इसमें से गेन कर सकता है। हम कैसे गेन कर सकते हैं? क्या कोई नेशनल पॉलिसी हमारे पास है जो हमें एक मंजिल तक पहुंचाए? अपॉर्चुनिटी तो चले हो सकती है। देखिए, अभी 2 दिन पहले इप्सॉस जो एक फ्रेंच कंपनी है उसने पाकिस्तान भर में एक सर्वे किया है। वहां पे तकरीबन 11 करोड़ पाकिस्तानी, 50% से ज्यादा पाकिस्तानियों ने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई और बेरोजगारी का है। जब उनसे पूछा गया कि करप्शन कितने लोगों का सबसे बड़ा मसला बनता है, तो 3% पाकिस्तान की आबादी जो है 3%, वो ये कहती है कि जी करप्शन हमारा बहुत बड़ा मसला है। अब यहाँ पे एक, जब हम कह रहे थे कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, हमारा जो हुक्मरान तबका है, हमारा जो मीडिया है, क्या उसने अवाम जो चाहती है, जो उनके मसाइल हैं महंगाई और बेरोजगारी के, उनके ऊपर फोकस करना है, या हमने अपना 95% मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक कि अगर तो हाउस इन ऑर्डर करना है तो फिर यहां पे भी करना है।